Good morning, students. Today we will speak about electric field intensity due to equally charged plane infinite length of sheet. Electric field due to equally charged plane sheet. Students, this is equally charged plane sheet. This is thin plane sheet, not thick. We can draw Gaussian surface by symmetry. Gaussian surface may be parallel pipe or cylindrical in this case. Here I draw a cylindrical Gaussian surface. In NCERT book, there is a parallel pipe Gaussian surface. For discharged plane sheet, dA means A is in this direction and electric field E will also in this direction. Here electric field E will be in this direction and dA also in this direction. Dear students, there is a contradiction. You will think that this intensity is in direction and it is in this direction, so it should be suspected. But no, it is added. That's why both flux are going away from this surface. So phi E equal integral E dot dA plus integral E dot dA. That is 2 integral E dot dA. Two E into dA, because E dot dA equal E dA cos 0. That is E dA. dA is the area of the cylinder, area of the base of cylinder A, equal to E A. According to Gauss's law, phi A equal Q upon epsilon naught, that is 2 EA Q upon epsilon naught, or E equal Q upon 2 epsilon naught A. You know Q by A. Q by A is surface charge density sigma.
sigma surface charge density. Hence Q by A is eliminated by sigma and we get equal sigma upon 2 epsilon naught. This is electric field intensity due to equally charged infinite length of plane sheet. It is clear to see here that intensity does not depend upon the distance from the sheet. That is, if sheet is here, then electric field intensity is here also equal here, here and here. It is also here, then here. Means it doesn't depend upon the distance from the sheet. Now again students, first we take infinite length of plane sheet. You can draw by symmetry Gaussian surface, cylindrical or parallel pipe. Here I draw this Gaussian surface cylindrical shape. EDA is also outward flux from this Gaussian surface from this plate, and here EDA is also outward flux. So both will be added. Net flux phi equal integral E dot dA plus integral E dot dA. That is equal to 2 integral E dot dA. E and dA both are in the same direction, so angle between electric field intensity and area vector is 0 degree. E dot dA equal E dA cos 0, which is equal to EDA. EDA here 2E integral dA. Integral dA is the area of base of the cylinder, that is A. Phi equal to EA. By Gauss's law, phi E equal integral E dot dA equal Q by epsilon naught. Here Q by epsilon naught, 2EA equal Q by epsilon naught are equal Q upon 2 epsilon naught A. You know surface charge density sigma equal Q by A. Q by A is eliminated by sigma and we get equal to sigma upon 2 epsilon naught. Now in Hindi, बच्चों ये एक इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट साइड की इक्वली चार्ज प्लेन शीट है। इसके कारण हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो या तो सिलिंड्रिकल होगा और नहीं तो पैरेलल पाइप होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में पैरेलल पाइप बनाया है जिसको बनाने में आपको कठिनाई होगी, तो हमने यहाँ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। आप देखिए यहाँ भी फ्लक्स आपका आउटवर्ड होगा और इस डायरेक्शन में भी आउट, क्योंकि शीट आपकी ऐसी है इस तरह से है, इस डायरेक्शन में भी आउटवर्ड फ्लक्स होगा, इधर भी चार्ज होगा इधर भी चार्ज होगा और इस डायरेक्शन में भी आउटवर्ड फ्लक्स होगा। तो गॉसियन लॉ गॉसेस लॉ के अनुसार जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसलिए इसको और इसको हमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। यहाँ हमने ऐड कर दिया, नेट फ्लक्स ये हो गया आपका 2 इंटीग्रल E डॉट dA हो गया, क्योंकि E और dA एक ही डायरेक्शन में है तो E डॉट dA मीन्स E dA cos 0, ये E dA मिल जाता है। dA का इंटीग्रल ये जो इसकी एरिया है इसके बेस की सिलेंडर की वही है, मतलब A हमने मान लिया तो 2EA मिल जाता है। अब फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, या फाई E की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब E इक्वल Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा इक्वल Q बाई A सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल Q बाई A है तो Q बाई A को हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा से, किया गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वली चार्ज प्लेन शीट।
अब बच्चों देखो, इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोगों ने ज्ञात किया है, अगर आपकी एक प्लेट है तब तो ऐसा है, अगर इन केस ऑफ कैपेसिटर अगर हम दो प्लेट ले लें तो क्या होगा? These plates, there are two plates. First, ये प्लस क्यू, ये भी चार्ज है, इक्वली चार्ज प्लस क्यू, और इधर भी प्लस क्यू है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर यहां कोई पॉइंट लें या यहां कोई पॉइंट लें या यहां कोई पॉइंट लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी? अगर यहां हम पॉइंट लेते हैं तो आप देखिए, ये जो प्लस चार्ज होगा ये इसको रिपेल करेगा, मतलब E1 इस डायरेक्शन में होगा, E1, और ये भी इसको रिपेल करेगा तो E2 भी इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे भी यही कंडीशन होगी, E1 इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि रिपल्सन होगा, और E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस पॉइंट पर आप देखें, ये जो होगा इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये E1 होगा, और यह इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये E2 होगा। या अगर इस पॉइंट PQR हम लोग मान रहे हैं तो एट P एंड R point P and R equal E1 plus E2। E1 plus E2 ये हो जाएगा 2E1, क्योंकि आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आप अलग अलग लिख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। अगर ये चीज हम लें आपका एट पॉइंट Q, तो Q पॉइंट पर आप देखें E इक्वल हो जाएगा, अगर हम E1 प्लस E2 लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, E इक्वल E1 माइनस E2 हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होने के कारण, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 0। तो इस केस में इंटेंसिटी आपकी 0 मिलेगी अगर दोनों प्लेट पॉजिटिव है। तो अगर एक प्लेट पॉजिटिव ले लिया जाता है और एक नेगेटिव प्लेट ले ली जाए, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, उस कंडीशन में अगर हम पॉइंट P, Q और R को लें, उस कंडीशन में क्या होगा? इस पॉइंट P पर देखो बच्चों, ये फर्स्ट प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ रिपल्सन होगा, और सेकेंड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अट्रैक्शन होगा। यही कंडीशन R की होगी, E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन पॉइंट Q पर आप देखें, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, E1 हुआ, और यह इसको इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, E2 होगा। आप देखें जो दूसरा फिगर है सेकेंड के लिए, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकेंड है, तो सेकेंड फिगर के लिए एट पॉइंट P एंड R
इक्वल E1 प्लस E2, डायरेक्शन सेम है आपकी, ये हो जाएगा E1 माइनस E2 और ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका जीरो हो जाएगा। P और R पे जहां इसमें सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता था वहां इसमें जीरो होगा, और बीच में आप देखें एट पॉइंट Q पे अगर हम लोग देखें तो E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसलिए E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2, ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स इन दिस केस यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी जीरो है, यहाँ और यहाँ बाहर को भी बाहरी बिंदुओं पे इंटेंसिटी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, जबकि सेकेंड कंडीशन में व्हेन बोथ प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड तो बाहरी बिंदुओं पे जो इंटेंसिटी है वो जीरो है और अंदर किसी भी बिंदु पे इंटेंसिटी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।